इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ऐतिहासिक विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस ऐतिहासिक प्रांगण में हुई, सदाकत आश्रम के प्रांगण में। एक ऐतिहासिक दौर से हम गुजर रहे हैं जहां लोकतंत्र पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। वोट चोरी का अभियान आपके सामने आप देख ही रहे हैं। निरंतर खुलासे हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा भी यहीं से गुजरी है। आज इस सब के परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई उसमें दो प्रस्ताव पारित किए गए, एक राजनीतिक प्रस्ताव और दूसरा बिहार के वोटर्स के नाम पे एक अपील। मैं श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी से आग्रह करूंगा कि वो राजनीतिक प्रस्ताव और संगठन सृजन पर आपसे चर्चा करें। तत्पश्चात श्री कन्हैया कुमार बिहार की जो अपील है जो आज कार्य समिति ने अनुमोदित की है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। श्री केसी वेणुगोपाल जी, आपसे अब राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद भवन जी, जयराम जी, कृष्णा जी, सबसे नमस्कार। Today, the extended Congress Working Committee meeting was convened at Sadakat Ashram, Patna, a venue deeply rooted in the history of freedom struggle. This office is emotionally connected to the entire Congress people in this country. So we are really proud of having an extended CWC meeting in this Sadakat Ashram. Unfortunately, 1 month before, BJP people attacked this office, but now the message coming out from this office is really energetic and enthusiastic. The meeting was attended by CWC presided by Congress President Mallikarjuna Kharge ji, attended by Rahul Gandhi ji and the CWC members, PCC President, CLP leaders, CEC members and Parliamentary Party office bearers. We have adopted basically two resolutions, and we have already discussed about one major organizational issue of Sankaran Srijan program. 51 people had participated in the debate, discussion. 51 people participated in the discussion. Basically, discussion on this resolution moved by Jairam ji on overall political situation in the country, and the resolution moved by our PCC President Rajesh Ram about the specific situation in Bihar ahead of the upcoming assembly elections. I would like to mention about the issue which had been thoroughly discussed in the CWC. Number one is, I already told, organization structuring program. Number two, the vote chori program. Honorable Congress President and Rahul Gandhi congratulate the entire Bihar leaders for having a massive voter adhikar yatra these days. This yatra has created a very big buzz all over the country. Wherever you are going in our country, the people are now asking about vote chor, gaddi chor, nara. That much this nara reached to the bottom level of the people of this country. Therefore, we thought that this is one of the successful programs done by our Gadbandhan, Mahagathbandhan in Bihar. So Bihar PCC also done a very good job. Honorable Congress President and LOP Rahul Gandhi ji really congratulated them. We are doing basically three programs. We have done vote chor, gaddi chor slogan per. We are already done two programs. One is night marches in the district headquarters. All over India we have done, our entire party purpose done night march with 1,000 and 10,000 people participated in each district. Number two, state level rally on the same issue with huge participation we are demonstrated. Vote chor, gaddi chor. September 15 to October 15, we planned a massive signature campaign. 5 crore people will sign the paper
asking 5 questions to the Election Commission of India. The signature campaign is already going on. We will collect 5 crore signatures from all over India, and in the end of the October, we will submit to the Election Commission of India this 5 crore signature demanding answer from the Election Commission of India. Then, coming to the Sankatan Srijan program, I think in the history of Indian National Congress, I think any of other organizations also, we are initiated a very successful and Shandar program. You can understand that. Now, entire Congress party is involving party Karyakarta and common Karyakarta on the decision-making process of DCC presidents. DCC president is going to be one of the most important positions in the party. They have the responsibility to build the block, mandal, booth, and to strengthen the social media and strengthen everything. But these DCC presidents will also having powers more than earlier. We started the process from Gujarat, then Haryana, Madhya Pradesh, now Jharkhand, Odisha and Punjab and Uttarakhand going on. I can tell you, so far 10 states has been taken up. I told about this. Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, Uttarakhand, Punjab. Now we are taking up Rajasthan, Chhattisgarh and then Telangana. There were 10 states. In 3 states, DCC presidents are announced. State-wide exercise is almost complete is 4 states. There were 7 states already complete process. Total organization district of this covered is 274. Total number of DCC president announced is 144. 144 DCC president announced so far. You know that system. One senior leader, like a former central minister, CP Joshi is going for a district as a district observer. Our PCC presidents and general secretaries are going as a district observer. They will spend 7 days, 8 days in a district. They will ask the common workers about the DCC president selection process. Then they will come with a panel. After that, multi-level discussion will be there again. Then we are announcing the DCC presidents. This process we already completed. Total number of DCC presidents announced is 144. So far we announced 144. Now 1,912 days are spent by this observer for selecting DCC president. After that, we are going to select it. Wherever this process is complete, we will go for block president selection, mandal president selection, booth president selection, BLA 1 and BLA 2 selection process. There were this 2025, we decided in Belgaum that 2025 is the organization strengthening year. That is why we are doing all these things. Today, entire CWC discussed and CWC totally satisfied about the process going on. They are very much proud of this process. This is what I want to say these things. Political resolution. Political resolution, I think Jairam ji can brief. राजनीतिक प्रस्ताव तो आपको मिल गया होगा, नहीं मिला है तो अभी मिल जाएगा, अभी आ जाएगा। पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में कई मुद्दे शामिल हैं। ख़ास तौर से जो वोट चोरी अभियान राहुल जी ने निकाला है, और इस प्रस्ताव के संदर्भ में राहुल जी ने कहा भी कि अगले 1 महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आलंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबा जिक्र है,
और जो अभी अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा और ये 5 करोड़ सिग्नेचर हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे। इसके अलावा कूटनीति पर काफ़ी बहस हुई, प्रस्ताव में भी इसका बहुत जिक्र है। राहुल जी ने भी इस पर अपने अंतिम भाषण में कहा कि कूटनीति की विफलताएं जो हमें देखने को मिल रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं कूटनीति को लेकर, और ये सारे दोस्त प्रधानमंत्री के हैं और दोस्तों ने ही ऐसा स्थिति पैदा कर दी है कि हमारी कूटनीति की विफलता सामने आई है। अमेरिका, चीन और कुछ ही दिन पहले हमें समाचार पढ़ने को मिला कि सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी मामलों पर, सुरक्षा मामलों पर एक समझौता किया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी देशों को लेकर इस प्रस्ताव में जिक्र किया गया है, इस पर चर्चा की गई है। और कूटनीति अभी एक बहुत बड़ी विफलता है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है पर गब्बर सिंह टैक्स है। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला और दूसरा धक्का 1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स से मिला। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार आने की ज़रूरत है, जीएसटी 2.0 लाने की ज़रूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीज़ें खरीदेंगे जितना की उम्मीद हो रही है। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी में जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ बढ़ेगा। मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है। और जीएसटी को भी लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि इससे अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज मिलेगा, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का दर बढ़ेगा, इस पर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण को लेकर प्रस्ताव में चर्चा है और सामाजिक न्याय को लेकर खास तौर से जाति जनगणना जो एकमात्र कारण है। मोदी सरकार ने 8 साल से चुप्पी नहीं तोड़ी थी जाति जनगणना को लेकर, पर अभी उन्होंने अपना निर्णय दिया है कि 2027 के फरवरी महीने में ये जाति जनगणना करवाया जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी के दबाव के कारण, राहुल जी और खड़गे जी के अभियान के कारण ही हो पाया है सामाजिक न्याय। और सवाल तो उठता है कि सामाजिक सर्वेक्षण बिहार में तो हुआ था, 65% आरक्षण की घोषणा की गई थी, पर क्या वजह है, क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उस आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा नहीं दे पाए हैं। 30 साल पहले कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु के 69% आरक्षण अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा दिया था, पर बिहार के 65% आरक्षण को
जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया गया था, उसको संवैधानिक सुरक्षा अभी तक प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है और ये डबल इंजन सरकार की विफलता है। तो आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, कूटनीति के मुद्दे हैं, ये सब आपको मिल जाएगा इस प्रस्ताव में। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया और इस पृष्ठभूमि तो संदर्भ तो बिहार का चुनाव है और इसीलिए विशेष एक प्रस्ताव बिहार की जनता के नाम पर एक निवेदन किया गया है इस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के द्वारा, जो अभी आपको कन्हैया जी पढ़कर बताएंगे। शुक्रिया। मीडिया के साथियों और आज पटना के सदाकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में खास करके जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो बैठक है उसमें देश भर की तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, लेकिन पूरा फोकस जो है वो ऐसा ही बोल देते हैं, हम ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने बताया कि आज पटना के सदाकत आश्रम में एक ऐतिहासिक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। वैसे तो इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, देश भर के विषय पर चर्चा हुआ, संगठन सृजन पे चर्चा हुआ, लेकिन इस बैठक का फोकस बिहार था और वोट चोरी का सवाल था। और उसी बैठक से एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आज़ादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकीकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज़्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज़ादी के बाद औद्योगिकीकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई कि जब आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह इस बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को और लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी
कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वह सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर भी है। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए में 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो वो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वह लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वह रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, टीआरई 4 का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी यह सरकार रोजगार चोर है। इसके साथ साथ हमने बिहार में यह देखा है कि आए दिनों लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं है, कुशासन है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई है बिहार की। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है। इसीलिए वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत यह है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज़्यादा गोलियां बरसी हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन, प्रशासन और सुशासन के अधिकार की भी चोरी करती है। तो यह जो अपील है आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बिहार के मतदाताओं के नाम जारी किया है। हम उसके एक एक बिंदु को डिटेल्स नहीं बोल रहे हैं, संक्षेप में आपके बीच में रखा है। यह अपील आप तमाम मीडिया के साथियों को मिल जाएगा। और हमारा आपसे निवेदन है कि बिहार के हक की इस लड़ाई में, संविधान बचाने की इस लड़ाई में वोट चोरी को रोकने के लिए और लोगों की नौकरी के लिए, पलायन को रोकने के लिए, भागीदारी के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया जी। ये 4.5 घंटे चली हमारी सीडब्ल्यूसी की बैठक और 51 लोगों ने उसको एड्रेस किया। अब आपने हमारे प्रस्तावों के विषय में जान लिया है। अब आपके सवाल, प्रस्ताव भी अभी आपके मोबाइल्स पे आ रहा है या आ चुका होगा। अब आपके सवाल एएनआई एक We are initial stage itself. We are really proud of that we are meeting, extended working committee is meeting in Tadhagat Ashram, in which office Babu Rajendra Prasad ji stayed after he vacating the President of India. After vacating the President of India, Babu Rajendra Prasad stayed in this house. You checked that. We are really proud of that Rajendra Prasad's legacy. Therefore, BJP is now trying, our CWC's aim is very clear. We have done in Belgavi, where there was no election. We have done in Ahmedabad, there also no election. Now we are in Patna, because SIR is introduced in Bihar. After that, Vote Adhikar Yatra is also done in Bihar. Now Bihar is becoming one of the major democratic point. That is why the history of Bihar is also like that only. Bihar has a biggest pivotal role in freedom struggle. That is why we have done in this CW section is CWC in Bihar. Anwar ji, PTI.
Certainly, he himself demonstrated through his two press conferences that this is not really an allegation of vote chori. Here is a clear evidence of vote chori. That was his press conference. Today he mentioned about that. He is again working on other constituencies, which Jairamji already told about, which can be a hydrogen bomb or any other bomb coming soon. The entire discussion on this issue is that basically these BJP people are now coming into the power with this vote chori exercise. They are not come legitimate. They didn't come legitimately. Basically, they have stolen the election. That is why they become prime minister, they become chief ministers, everything. We are going to demonstrate in a bigger way in coming days. That is what Rahul ji also mentioned. हम पूछिए। बीजेपी की क्वेश्चन 45 साल से फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। आप इतिहास में मत जाइए, आज की हकीकत की बात कीजिए। आज की हकीकत है वोट चोरी, और वोट चोरी का नतीजा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। आप इस मुद्दों से ध्यान हटाकर आप मुझसे सवाल, आप नहीं, हमारे कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 60 साल पहले आपने क्या किया। आप जानते हैं कि पहला तेल का कारखाना बिहार में लगाया गया और इसकी कड़ी आलोचना हुई, पंडित जी की कड़ी आलोचना की। क्यों आप बरौनी में लगा रहे हैं? क्यों नहीं आप जहां तेल आप निकाल रहे हैं, तेल और कहीं निकाला जा रहा है, पाइपलाइन लगाया गया, बिहार में वो तेल लाया गया और कारखाना बना अविभाजित बिहार में। तो इतिहास में कई बातचीत हो सकती है, मुझे भी इतिहास की कुछ जानकारी है। मैं रविशंकर प्रसाद का जवाब देना चाहता हूं। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे तो और क्या बैठक करेंगे? राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक बैठक करती है, राजनीतिक मुद्दों लेती है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी अभी बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है, वो वोट चोरी को लेकर हमारी आलोचना कर रहे हैं, उद्योगीकरण को लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं, आप नहीं, हमारे बीजेपी के मित्र और साथी। और वहां बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में, लेह में बीजेपी का ऑफिस जलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। एक सवाल है कि आप CWC की बैठक कर रहे हैं बिहार में, आज आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन महागठबंधन में आज तक आपने अपना फेस क्लियर नहीं किया, लगातार आपसे सवाल पूछे जाते रहे। शुक्रिया। बार बार कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के प्रयासों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कांग्रेस पार्टी महागठबंधन बिहार में बिहार के लोगों के मुद्दों को लेकर एकजुट होकर आगे बढ़ रही है। मुझे ताज्जुब होता है कि सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर रोजगार चोर भी हैं। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर आमदनी और बचत चोर भी हैं। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोर ने क्राइम बढ़ा दिया है। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने किसानों का दाम दुगना नहीं किया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवाया। सवाल ये क्यों नहीं आता कि वोट चोरों ने पेपर लीक करवा के छात्रों पे, युवाओं पे लाठीचार्ज करवाया। मुद्दे बिहार के हैं, बिहार की जनता के हैं और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं
कि जनता की आवाज बनिए, बिहार की आवाज बनिए, भारत की आवाज बनिए और वोट चोरों से सवाल कीजिए 11 साल में आपने क्या किया, 20 साल में आपने क्या किया। सवाल ये हैं, बिहार के हैं, भारत के हैं, जनता के हैं। धन्यवाद। मौसमी Shall we go? We have to go. There are timeline clearly we told about there are timeline 2025 is the Sankhatan Srichan Abhayan ka timeline. Maybe sometimes it will extend 1 or 2 months. That's all. Across the country, it will be across the country. एफआईआर का जो मामला चल रहा है उसका जवाब तो ये है इसके बारे में जवाब सर एफआईआर का मामला चल रहा है और 30 तारीख को फाइनल स्टार्ट हो। इस बीच में एक दो रोजों में एक एक बूथ पर 200-250 लोगों को नोटिस जारी है। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता इस तरह की इसका कोई खंडन नहीं हो रहा है। क्या क्या हो रहा है इसके बारे में जानना चाहिए। क्या फिर से बोलिए? हाँ, जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की सभी पार्टियों की तरफ से, हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। और आपने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन के अनुसार जो मृत लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने राहुल गांधी जी के साथ जाके चाय पी। तो डिस्क्रिपेंसीज तो हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, सभी ने देखा पूरे देश में। और इस तरह की कई विसंगतियां हैं तो उसको इलेक्शन कमीशन को दूर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही है फ्री एंड फेयर पोल कराना। जो अब भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड दफ्तर बन के काम करेगा तो कभी भी फ्री एंड फेयर पोल नहीं हो पाएगा। उसी का हम लोग मुखालफत कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर पोल हो, तभी जनतंत्र बचेगा, तभी संविधान बचेगा। धन्यवाद। आप पूछिए पूछिए। बिहार में राहुल राज भी रहा, लेकिन नीतीश राज ने आपको एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठकें सिर्फ चुनाव के संदर्भ में नहीं किया जाता। अभी अभी हमारे प्रभारी ने आपको बताया है, बेलगावी में हमारी बैठक हुई, उसके बाद अहमदाबाद में बैठक हुई, अभी पटना में बैठक हुई है। तो अलग अलग जगहों में हम बैठक करते हैं। साधारण तरीके से हम दिल्ली में कराते हैं, ज़्यादातर हमारे बैठकें दिल्ली में होती हैं, पर कभी कभी हम दिल्ली के बाहर भी करते हैं। तो ये कहना कि हम बड़े दशकों के बाद पटना में आए हैं, हमारे कई ऐसे बैठकें बिहार में हुई हैं। ऐसा नहीं है बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में हमारे नेता आते हैं, हमारे नेताएं आए हैं, हमारी बैठकें हुई हैं, विचार चिंतन मंथन हुआ है। पर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक जो अभी एक सिस्टम हमने चलाया है, खरगे जी ने और राहुल जी ने, कि जहां हो सके वो दिल्ली के बाहर ही हम करें। तो बेलगावी में हुआ, एक साल में, एक साल के अंदर ये तीसरा बैठक है एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी का। 8 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर ये कभी नहीं हुआ है। और ये एक जानबूझकर एक रणनीति अपनाई गई है खरगे जी की और राहुल जी की, कि हो सके जितना हो सके हम बाहर ही करें। one final point. CWC बोल रहे हैं एक
That are all internal decisions. Bihar unity is discussing with Bihar Congress is discussing with other allies. CWC we didn't discuss about the seat sharing alliances. One major thing also I left out. I would like to mention in your notice. Congress working committee, extended working committee appreciated Telangana government today for introducing a historic decision. In Telangana, 42% reservation have been given to OBC and EBC in the local body election. This is the role of the Congress party. Telangana, we have given 42% reservation in the local bodies to OBC and EBC. Telangana is the first state which is giving OBC reservation in the local body 42%. CWC appreciate that also. Bihar also, we have going to promise on EBC issues. Immediately after this, Rahul Gandhi ji and all other Mahagathbandhan leaders will do that. Whatever we are promising, we are going to fulfill it. एक मिनट जो अभी तेलंगाना के बारे में इन्होंने कहा है, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना में सितंबर के महीने में 2023 में ऐसे ही एक बैठक हुई थी हैदराबाद में, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और 2 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी पटना में ये एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।